Hello friends, welcome back to our new video, that is the continuation of our previous video. As in our previous video we study about the introduction of the brain and the parts of the brain in detail. So now we go more deeper into the brain and we are going to study about first of all we are going to study about the cerebral cortex and the two hemispheres of the brain, the white matter and the gray matter and the four lobes. ओके जब प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लोब्स के बारे में बताया था इन डिटेल, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लोब्स इन डिटेल. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेरिब्रल कॉर्टेक्स. तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज अ रिंकल्ड आउटर लेयर of the cerebrum that is responsible for high level mental process. You can see in this diagram, this is our cerebrum and this is the outer layer of the cerebrum which is called as cerebral cortex. So this cerebral cortex has different functions, like the function includes thought, our language and memory and emotions. Okay, these are some high level mental process which is done by the cerebral cortex. So that is all about the cerebral cortex. All understood? Okay, next move on to the hemispheres. So students, our brain is divided into two parts, that is called two hemispheres, right and left. As you can see in this video, this and this is our cerebrum and this is divided by this layer. So what is this layer called? This layer which divides the cerebrum into two parts is called corpus callosum. Okay, ये नर्व फाइबर्स का एक बंडल होता है. ठीक है, नर्व फाइबर्स का एक बंडल है जो कि आपके सेरिब्रम को डिवाइड करता है और it will help to transmit the information and regulate the process of the brain from right to left. So that is clear. Hemispheres, the hemispheres of the brain is divided into two hemispheres, right and left, divided by the layer called corpus callosum. Okay, so what are the different functions of the two hemispheres? These two hemispheres always work together, but they have some different functions. For example, the right hemispheres helps in language and logical things. जितने भी आप लॉजिक की थिंग्स करते हो, मैथ्स, साइंस या फिर और भी जितनी भी चीजें आप उसमें लॉजिक जब देखते हो तो वो क्या होता है, आपका राइट हेमिस्फीयर इज वर्किंग. बट व्हेन यू आर डूइंग समथिंग क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक, ओके, क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक, लॉजिक में और आर्टिस्टिक थिंग्स में आप डिफरेंस समझ पा रहे हो? तो जब आप कुछ क्रिएटिव करते हो, कुछ आर्टिस्टिक स्किल्स आपके काम करते हैं, तो एट दैट टाइम योर लेफ्ट hemisphere of the brain is working. Okay, one more interesting thing to learn about the hemispheres is that the right hemispheres controls the left side of the body and the left hemisphere controls the right side of our body. Okay, understood? So this is opposite. The right side of the hemisphere controls the left sides of the body. For example, my for example, my right hand, my right hand movement, right leg movements, these all are controlled by the left hemisphere. But it is vice versa. Okay, opposite. राइट साइड, इन सिंपल वर्ड्स, राइट साइड आपके लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, लेफ्ट साइड आपके राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं. सो क्लियर हो गया, हेमिस्फीयर्स भी क्लियर हो गए. नेक्स्ट क्या देखते हैं हम? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लोब्स, डिफरेंट लोब्स ऑफ द हेमिस्फीयर्स इज कंप्लीट. सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू लोब्स ऑफ द सेरिब्रम और यू कैन से द ब्रेन. मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जो ब्रेन की जगह आपको सेरिब्रम या फिर ब्रेन, दोनों चीजें आपको मिल सकती है. फॉर एग्जाम्पल 4 लोब्स ऑफ द ब्रेन भी बोल सकते हैं आप, और वी कैन
called as four lobes of the cerebrum. Cerebrum की जगह हम brain word कई बार आपको मिलेगा because cerebrum is the only largest part of the brain, as you can see there. This one is our cerebrum. So the hemispheres, the lobes, all are present in the cerebrum. So you can also call it four lobes of the brain, or you can also call it four lobes of the cerebrum. So we are going to study the frontal lobe, or the first lobe of the brain is called as frontal lobe. लोकेशन कहाँ है फ्रंटल लोब का? वर्ड में आपको मिल रहा है फ्रंटल लोब. कहां पर लोकेटेड होगा? फ्रंट ऑफ द ब्रेन में. यहां पर देख सकते हैं ये वाला पार्ट आपका, दिस वन, ये ठीक है, ये वाला आपका क्या है? फ्रंटल लोब है. फ्रंटल लोब इज प्रेजेंट एट द फ्रंट ऑफ द ब्रेन. एंड व्हाट अबाउट इट फंक्शंस? इट कंट्रोल्स थिंकिंग, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशंस, बिहेवियर एंड मूवमेंट. और एक इंपॉर्टेंट बात जो है, फ्रंटल लोब में आपका ब्रोकास एरिया प्रेजेंट होता है. ब्रोकास एरिया क्या होता है? ब्रोकास एरिया आपकी स्पीकिंग में क्या करता है? स्पीच में प्रेजेंट, स्पीच और यू कैन से स्पीकिंग, बोलने में जो आपको हेल्प करता है, जो एरिया ऑफ द ब्रेन, उसको नाम दिया गया है. क्या नाम दिया गया है? ब्रोकास एरिया. तो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ब्रोकास एरिया कौन से पार्ट ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होता है, तो द आंसर इज फ्रंटल लोब. फ्रंटल लोब में क्या प्रेजेंट होता है? आपका ब्रोकास एरिया. और जो ब्रोकास एरिया होता है वो किस एरिया होता है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर योर स्पीच. ठीक है. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द पैराइटल लोब. पैराइटल लोब, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेंसर और द टॉप सेक्शन. सेंसर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसका जो फंक्शन है क्या है? सेंसर. जो चीजों जो हम सेंस करते हैं, दैट इज द वर्क ऑफ द parietal lobe that is present at the top. Okay, top section. This is the frontal lobe, and this is the top, that is the parietal lobe at the top section. So you can remember these words. Okay. Next क्या है? It helps to feel. Okay, feel the sensing part, understand, touch, temperature, body position. Next, also responsible for spatial awareness and understanding. Spatial awareness means कि the awareness about the place where you are, कि जहां पर आप प्रेजेंट है और वहां उस जगह से लेकर और जो चीजें प्रेजेंट है उसके साथ आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है. फॉर एग्जाम्पल, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा बट अब समझ में आ जाएगा. जैसे कि मैं इस रूम में प्रेजेंट हूं, बट अगर लाइट ऑफ भी हो जाती है, आई नो कि कौन सी चीज कहां पर प्लेस है, तो मुझे पता है, माय ब्रेन को पता है मैं कहीं टकराऊंगी नहीं, है ना. मुझे पता है कि यहाँ जाना है, यहाँ जाना है. तो चीजों के डिस्टेंस को, इन सब चीजों को क्या है, हमारा जब ब्रेन क्या है, ब्रेन का ही तो फंक्शन है सब कुछ. ओके, तो ये सारी चीजें जो है स्पेशल अवेयरनेस में आती हैं. तो ये सारा फंक्शन आपका कौन करता है? पैराइटल फंक्शन. मेन फंक्शन आपका जो है, किसी भी पार्ट का बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बट एक पर्टिकुलर मेन फंक्शन है जो आपको जरूर याद रखना है. ठीक है. जैसे कि पैराइटल, जैसे कि फ्रंटल में क्या था, दैट की ब्रोकास एरिया वहां पर प्रेजेंट है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच प्रोडक्शन. नेक्स्ट क्या मेन चीज है पैराइटल लोब के बारे में, कि मेन फंक्शन क्या है इसका? सेंसेशन. ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट लोब. नेक्स्ट लोब इज टेम्पोरल लोब. सो आवर टेम्पोरल लोब इज प्रेजेंट हियर, दिस वन. You can see this one. This is our temporal layer. Sorry, temporal lobe. और इसकी लोकेशन कहाँ है? Located near your ears. ये आपके ears है, ears के पास ये वाले एरिया में. ठीक है. ये वाले एरिया में क्या होता है आपका? टेम्पोरल लोब प्रेजेंट होती है. और अगर हम इसके मेन फंक्शन की बात करें, तो इसका मेन फंक्शन है हियरिंग, विच यू हैव टू रिमेम्बर. टेम्पोरल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनली हियरिंग. अदर देन दैट अगर हम देखें तो इट ऑल्सो मैनेज अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज, मेमोरी फॉर्मेशन, एंड ऑल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द वर्निक्स एरिया. इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था? ब्रोकास एरिया. तो हमारे ब्रेन में दो एरिया होते हैं, एक होता है ब्रोकास एरिया, एक होता है वर्निक्स एरिया. ब्रोकास एरिया का काम है स्पीकिंग, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, स्पीकिंग के लिए हेल्प करता है. और वर्निक्स एरिया आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर सेइंग. जैसे कि मैं अभी जो बोल रही हूँ
वो आप कैसे समझ पा रहे हैं? अपने वर्निक्स एरिया की हेल्प से। ठीक है, तो वर्निक्स एरिया क्या कर रहा है? अभी आपका काम कर रहा है, आप सुन रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। बट जब आप बोलेंगे, जैसे कि मैं बोल रही हूं, तो मेरा कौन सा एरिया वर्क कर रहा है अभी? ब्रोकास एरिया। ठीक है, ब्रोकास एरिया कहां पर प्रेजेंट था? फ्रंटल लोब में। और वर्निक्स एरिया कहां पर प्रेजेंट है? टेम्पोरल लोब में। तो ये मोस्ट फेवरेट कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल्स में जो है कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन अबाउट द ब्रोकास एरिया, देयर फंक्शन एंड देयर लोकेशन एटसेट्रा। तो समझ में आ गया, टेम्पोरल लोब समझ में आ गया। और लास्ट आपका रहता है ऑसिपिटल लोब, द फोर्थ वन एंड द लास्ट वन। ऑसिपिटल लोब आपका कहां पर प्रेजेंट होता है? फाउंड एट बैक ऑफ द ब्रेन। बैक साइड ऑफ द ब्रेन पे कहा क्या प्रेजेंट है आपका? ऑसिपिटल लोब। ठीक है, लोकेशन क्लियर हो गया, बैक साइड ऑफ द ब्रेन। रिस्पॉन्सिबल फॉर, दैट मीन्स मेन फंक्शन, इसका जो मेन फंक्शन है दैट इज आर विजन। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑसिपिटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन। इट प्रोसेस विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आई। जितनी भी विजुअल इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं उसको आपका जो ऑसिपिटल लोब है वो क्या करता है? प्रोसेस करता है और फिर ब्रेन को इंफॉर्मेशन देता है कि व्हाट आर यू सीइंग, कि जो भी आप अपनी आईज से देख रहे हैं वो कौन बताता है ब्रेन को? कौन सा जो पार्ट है ब्रेन का फंक्शन करता है? दैट इज ऑसिपिटल लोब। तो ऑसिपिटल लोब के बारे में इतना ही है। यू हैव टू रिमेंबर इट्स लोकेशन, दैट इज द बैक ऑफ द ब्रेन, और जो इसका फंक्शन है दैट इज विजन। तो मैंने आपको चारों लोब्स बता दिए हैं और चारों लोब्स के फंक्शन भी बता दिए हैं। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर ऑल: फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब विद देयर लोकेशन एंड विद देयर फंक्शंस। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो आपका ब्रेन है, आपने देखा है कि आपका जो ब्रेन होता है वो कभी भी कैसा होता है? स्मूथ सरफेस नहीं होता है उसका। ठीक है, उसमें क्या होता है? वो कुछ उसमें फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके के, आपने देखा होगा हमेशा डायग्राम में, है ना? तो ये फोल्ड्स क्या होते हैं? इसको हम कहते हैं गायरी और सल्काई, और सिंगुलर फॉर्म में हम कहते हैं गायरस एंड सल्काई। तो यहाँ पर मैंने बनाया, ये आपको ये आपके सल्काएं हैं और ये आपके क्या है? ये आपके क्या है? गायरस है। बट आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया एक, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का होता है कुछ, समझ रहे हैं आप? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पेपर लेंगे और उसको इस तरीके से आप फोल्ड कर देंगे तो उसमें क्या होता है? इस तरीके से आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है? उसका जो एरिया, वो पेपर बड़ा है बट वो क्या होता है? स्मॉल हो जाता है स्क्वीज करके। ठीक है, तो उसके अंदर किस तरीके के फोल्ड्स आ जाते हैं? कुछ जो फोल्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? रेज्ड रिजेस, और कुछ होते हैं शैलो ग्रूव्स। तो ये आपके जो रेज्ड रिजेस हैं, इस रिज को हम कहते हैं गायरस। ठीक है, और ये जो डीप वाले वैली की तरह है, ठीक है, शैलो ग्रूव्स, ग्रूव्स कहते हैं इनको। शैलो ग्रूव्स क्या है? वैली की तरह, या फिर अगर कॉमन लैंग्वेज में बोलूं मैं आपको समझने के लिए, तो आप इसको माउंटेन, ठीक है, और इसको वैली, ये माउंटेन और ये वैली। तो जो माउंटेन है वो क्या है? गायरस है, और जो वैली है वो क्या है? सल्काए है। अगर आप वैसे उसको बोलेंगे तो आपको रिजेस एंड ग्रूव से आप समझ सकते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है ब्रेन का स्ट्रक्चर? क्योंकि बिकॉज क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। और हमारा ब्रेन कितना होता है? छोटा सा है। हमारा जो है क्रेनियम है, हमारा जो स्कल बोन है वो छोटी है, बट उसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स को एडजस्ट होना है, इसलिए दैट्स व्हाई वो क्या करता है? अपने सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए क्या करता है? इस तरीके से इसका जो शेप है वो बनाया गया है। ओके, तो अंडरस्टूड? गायरी एंड सल्काई बहुत आसान है। इस तरीके से मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में बता दिया है। जो वैली है वो सल्काई है, और जो अप वाला एरिया है लाइक माउंटेन, इट इज कॉल्ड गायरस। तो ब्रेन में अगर बोलूं तो इस तरीके से जो दिख रहा है आपको, ये सल्काई एंड गायरस है। ठीक है, तो क्या रह गया आपका? अब ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो मैंने उसमें भी बताया ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर के बारे में क्या होता है। ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों में प्रेजेंट होता है, बट
इसकी लोकेशन जो है वो दोनों में क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ब्रेन पढ़ रहे हैं, तो मैं ब्रेन में ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर की लोकेशन बता रही हूँ। ब्रेन में हमेशा ग्रे मैटर कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटसाइड। ये वाला जो पार्ट है आपका, आउटसाइड वाला पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, ग्रे मैटर, और इनसाइड क्या प्रेजेंट होता है, व्हाइट मैटर। ठीक है, अंडरस्टूड। इन ब्रेन always remember the gray matter is present outside of the brain and the white matter is present inside of the brain. अब मैंने एक बात और बताई थी इंपॉर्टेंट प्रीवियस वीडियो में कि ये जो व्हाइट मैटर होता है इसका कलर व्हाइट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द माइलिनेटेड एक्सॉन्स। तो जो ग्रे मैटर होता है वो हमेशा सेल बॉडीज से बना हुआ होता है। सबको याद है, प्रीवियस वीडियो में बताया था। डायग्राम भूल गए कि याद है न्यूरॉन का, लाइक दिस। ठीक है, तो ये क्या था, यहाँ पे माइलिन शीट प्रेजेंट थी। मैंने बोला था कुछ नॉन माइलिनेटेड कुछ माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये ऊपर वाला क्या था, सेल बॉडी थी। तो सेल बॉडी से मेनली आपकी ग्रे मैटर बनता है और माइलिनेटेड एक्सॉन से आपका व्हाइट मैटर बनता है। तो मैंने बताया था कि ये माइलिन शीट की वजह से जो आपका व्हाइट मैटर का कलर है वो आपको कैसा दिखाई देता है, व्हाइट दिखाई देता है। क्लियर। अब अगर आपको इस चीज को याद रखना है कि स्पाइनल कॉर्ड में पोजीशन क्या होगी व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर की, तो वो ऑपोजिट होगी। स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर बाहर होता है और ग्रे मैटर अंदर होता है। इजी, अंडरस्टूड? ओके, तो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। और आज की वीडियो अगर हम समर अप करें तो मैंने आपको सेरिब्रल कॉर्टेक्स बताया। सेरिब्रल कॉर्टेक्स दैट इज द आउटर पार्ट ऑफ द ब्रेन, उसके फंक्शंस बताए। नेक्स्ट हमने देखा लोब्स ऑफ द ब्रेन के बारे में, दैट इज द 4 लोब्स। सबसे पहले हमने देखा फ्रंटल लोब जो कि आपके फ्रंट में है। देन उसके बाद हमने देखा पैराइटल लोब जो कि टॉप में है। उसके बाद हमने देखा पैराइटल, ठीक है, पैराइटल हो गई। नेक्स्ट क्या था, टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल कहाँ थी, अबव द ईयर्स। एंड ऑसिपिटल बैक ऑफ द हेड और ब्रेन। इसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस देखे हमने। और इंपॉर्टेंट थिंग हमने देखी ब्रोकास एरिया, वर्निक्स एरिया क्या होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है। एंड वी विल आल्सो स्टडी अबाउट द हेमिस्फीयर्स, द राइट एंड द लेफ्ट हेमिस्फीयर्स डिवाइडेड बाय द कॉर्पस कॉलोसम and the sulci and the gyrus. The raised ridges are called gyri and the shallow grooves are called sulci. And at the last, gray matter and the white matter and their location. So I hope ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगी एंड आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इफ एनी डाउट, आपको कुछ भी डाउट है, यू कैन मैसेज मी, यू कैन कमेंट ऑन माई वीडियो। एंड प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, पढ़ाई करते रहें और अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ते रहें। थैंक यू।